NCERT book A Pact with the Sun, Chapter 1 A Tale of Two Birds. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार की बात है, जंगल में एक पक्षी और उसके दो नए जन्मे बच्चे रहते थे। वे एक ऊंचे छायादार पेड़ में एक घोंसले पे रहते थे और उन बच्चों की माँ पक्षी दिन रात अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds live also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram, a little distance away. एक दिन एक बड़ा तूफान आया, बिजली गरजी और बारिश व हवा ने कई पेड़ों को उखाड़ दिया। लंबा पेड़ जिसमें पक्षी रहते थे वह भी नीचे आ गया। एक बड़ी भारी शाखा ने घोंसले को मारा और माँ पक्षी को मार डाला। भाग्य से बच्चे पक्षियों को तेज हवा जंगल के दूसरी तरफ उड़ा कर ले गई। उनमें से एक ऐसी गुफा के पास नीचे गिरा जहां लुटेरों का गिरोह रहता था और दूसरा थोड़ी दूर एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा। Day passed and the baby birds become big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. So the king lost his way and did not know where he was. दिन बीतते गए और पक्षी बड़े हो गए। एक दिन देश का राजा शिकार के लिए जंगल में आया। उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। हिरण गहरे जंगल में चला गया। राजा उसके पीछे था। जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वह जंगल से दूसरी ओर आने तक काफ़ी देर तक घोड़े की सवारी करता रहा। अब वह बहुत थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो गुफा के पास था। अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, "जल्दी जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। आओ और उसके गहने और घोड़ा ले लो। जल्दी करो, नहीं तो वह हाथ से निकल जाएगा।" राजा आश्चर्यचकित था। उसने ऊपर देखा और पेड़ पर उसे बड़ा भूरा पक्षी दिखाई दिया। राजा ने गुफा से आते हल्के शोर को भी सुना। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितना तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable."
The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. जल्दी ही राजा एक खुले स्थान पर आ गया जो आश्रम जैसा दिखाई देता था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, आश्रम में आपका स्वागत है महोदय, कृपया अंदर आएं और आराम करें। ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे, मटके में कुछ ठंडा पानी है। राजा ने देखा और पेड़ पर एक बड़ा भूरा पक्षी दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ, यह गुफा के बाहर वाले दूसरे पक्षी की तरह ही दिखाई देता था। उसने जोर से अपने आप से कहा, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. आप सही हैं महोदय, पक्षी ने उत्तर दिया। वह मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। वह अब वैसी ही बातें करता है जैसे लुटेरे करते हैं। वह मुझसे और बातें नहीं करता है। तभी ऋषि आश्रम में दाखिल हुए। "वेलकम सर," ही सेड टू द किंग। "प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. यू लुक टायर्ड. रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड." आपका स्वागत है महोदय, ऋषि ने राजा से कहा। कृपया अंदर आएं और अपने आप को घर पर समझें। आप थके हुए लग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आराम करें, फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps." The bird has always heard the little talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one had repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram now. Come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई और प्रत्येक पक्षी का व्यवहार कैसा था यह भी बताया। जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है, उसने कहा। ऋषि ने कहा, आखिरकार एक व्यक्ति उसकी संगति से ही जाना जाता है जिसमें वह रहता है। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बात सुनी है। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है, जबकि यह आश्रम वाला पक्षी वही कहता है जो उसने हमेशा सुना है। हम लोगों का आश्रम में स्वागत करते हैं। अब अंदर आएं और आराम करें। मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और अधिक बताऊंगा। स्टोरी एंड्स। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।